Good evening, everyone. So, in this particular lecture, we are going to discuss about how to calculate runoff. In last lecture, we have discussed about what is runoff and what is the different factors which affect the runoff. As you know previously, runoff is nothing but a part of rain which would cover the part of land and ultimately go into the rivers or any types of ponds, nala, etc. So runoff is nothing but after deduction of all type of losses, we could cover the rain that is known as a runoff. Suppose the losses through infiltrations, the losses through heating of sun or evaporation of water, after deduction of all these losses, whatever the part of water which flow on the grounds in the form of pattern and go into the rivers or ponds, that all known as the runoff. Okay. सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रन ऑफ के बारे में डिस्कस किया था. सो रन ऑफ होता क्या है? रन ऑफ मतलब होता है कि पानी जो भी बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद में जो भी लॉसेज है, लॉसेज मतलब या तो इन्फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि जो पानी है सॉइल के पोर्स के थ्रू, सॉइल के वॉइड्स के थ्रू हो करके अंडरग्राउंड वाटर टेबल के अंदर में जाएगा. कुछ वाटर्स क्या होगा, बाय द हीटिंग ऑफ सनलाइट्स दे कैन गो थ्रू इन द स्काई बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन होगा पानी का. किसके द्वारा? सनलाइट की हीटिंग्स के कारण. तो पानी गर्म होगा, इसके बाद से क्या होगा, इवोपरेशन के बाद में वो पानी क्या होगा, दोबारा इवोपरेट होकर के ऊपर की ओर जाता है. सो इन सारे लॉसेस को अगर हम क्या करें, डिडक्ट कर दें, किस में, रेनफॉल में, तो क्या कहलाएगा, जो हमारा पार्ट बचेगा वो क्या होगा, रन ऑफ होगा. मतलब क्या होगा, रन ऑफ कर करके हमारे रिवर्स में या उसको हम डैम्स के फॉर्म में स्टोर कर लें, जो भी करना है करें, बट वो सारा जो पानी कहलाता है डिडक्शन के बाद में बचा हुआ पानी, दैट इज कॉल्ड रन ऑफ. ओके. So in this particular session we are going to deal about the how to calculate the runoff. Okay, so there are different methods to calculate runoff as you see on the screen board. So mainly if we talk about the calculation of runoff, so English method is very important, next Strange's method, next Binney's method, and next runoff coefficient methods. These all are the methods to calculate the runoff. Okay, so first one is the English method, which is very popular and famous method while calculating the runoff. Next Strange's method, Binney's method, and last one is the runoff coefficient methods. Okay, so these first English and runoff coefficient, these are most widely used while calculating the runoff. Okay, but apart from that all are the important. Okay, so let's discuss one by one. Let's discuss about first about English methods. So what does by English methods, so he derives formula for catchment in West Maharashtra and divide the area as Ghat where rainfall is 200 centimeter or more and non-Ghat where rainfall is less than 200 centimeters. Okay, so English has derived the formula. तो देखो इंग्लिश ने क्या किया था, फॉर्मूला को ड्राइव किया था. उसने कैचमेंट को दो पार्ट में बांटा था, घाट रीजन्स में, पहले घाट एरियाज में, दूसरे नन घाट एरियाज में. सो घाट एरियाज क्या होते हैं, जहाँ का रेनफॉल जो है, जो प्रेसिपिटेशन से जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होते हैं. ओके, एज पर इंग्लिश, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एज पर इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट नन घाट रीजन्स. नन घाट एरियाज कहने का मतलब है जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से कम होते हैं. ओके, तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया कि अगर जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रन ऑफ होता है, वहाँ पे रेनफॉल होता है, वहाँ पे हम रन ऑफ कैलकुलेट करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ दीज फार्मूलाज. और क्या उन्होंने फॉर्मूला दिया था, 0.84 p माइनस 30.54. सो आप बोलेंगे कि सर ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ है. सो दीज आर द इम्पेरिकल फार्मूला विच इज़ गिवन बाय इंग्लिश. मीन्स इसका कोई प्रूफ नहीं है. उन्होंने एक इम्पेरिकल रिलेशन दिया था कि आप इस तरीके से अगर कैलकुलेट करते हैं, बेस्ड अपॉन दी वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च, बेस्ड अपॉन दी वेरियस टाइप ऑफ प्रैक्टिकल knowledge upon the runoff, he gives the formula. Okay, so there is nothing a proof of that, क्योंकि इंग्लिश मेथड्स जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, वो क्या दिया था, उन्होंने ये फॉर्मूला जो दिया गया था
वो क्या था, वो प्रूफ नहीं था उसका कोई, ये डायरेक्टली उन्होंने फॉर्मूला दिया था बेस्ड अपॉन दी प्रैक्टिकल के आधार पे, बेस्ड अपॉन दी वेरियस ऑब्जर्वेशंस के आधार पे, है ना, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है नन घाट रीजन्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं P इंटू P माइनस 17.74 डिवाइड बाई 254। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रन ऑफ में करते भी हैं, हम जब न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे तो वहाँ पे इसका यूटिलाइज करेंगे। सो याद रखिएगा मोर देन 200 सेंटीमीटर्स घाट एरियाज, उसके लिए 0.84 P माइनस 30.54, नन घाट एरियाज P इंटू P माइनस 17.74 बाई 254 एज पर इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्ट्रेंजेस कर्व मेथड्स में। सो व्हाट अबाउट द स्ट्रेंजेस कर्व? So as Stranges classified the catchment as a good, average and bad. Stranges ने क्लासीफाई किया था कैचमेंट को तीन भागों में, गुड, एवरेज एंड बैड में, जिस तरीके से इंग्लिश ने क्लासीफाई किया था घाट रीजन्स में और नन घाट रीजन्स में, ठीक है। ही गेव कर्व एंड टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू डेली मानसून एंड एनुअल रेनफॉल कर्व, ठीक है। इन्होंने एक कर्व दिया था और एक टेबल दिया था कॉरस्पॉन्डिंग टू डेली मानसून एंड एनुअल रेनफॉल कर्व इज ड्रॉन बाय टेकिंग एनुअल रेनफॉल ऑन एक्स एक्सिस एंड रन ऑफ ऑन वाई एक्सिस। मतलब एनुअल रेनफॉल को उन्होंने एनुअल जो हमारा रेनफॉल था उन्होंने एक्स एक्सिस पे उसको लिया था और रन ऑफ जो हुआ था वाई एक्सिस पे। मतलब अगर हम रेनफॉल की बात करें इस तरीके से, ये रेनफॉल हमारा अगर है रेनफॉल, उन्होंने इसको एक्स एक्सिस पे लिया था, ओके, और रन ऑफ को उन्होंने वाई एक्सिस पे लिया था, ऐसे वाई एक्सिस पे लिया था, ठीक है। रन ऑफ कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द कर्व फॉर द नॉन कैचमेंट बाय नोइंग द रेनफॉल ऑफ दैट कैचमेंट, है ना। अगर आपको कैचमेंट का क्या होगा, रेनफॉल पता है, मैं आपको फिगर से दिखा रहा हूँ, आपको अगर कैचमेंट का रेनफॉल पता है, यहाँ पे मान लो रेनफॉल, उन्होंने एक कर्व भी इस तरीके से दिया था, तो मान लो आपको रेनफॉल पता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आप रन ऑफ भी जान सकते हैं, ठीक, उन्होंने ये दिया था फ्रॉम द कर्व फॉर द नॉन कैचमेंट बाय नोइंग द रेनफॉल ऑफ द कैचमेंट। इन दिस केस जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द कैचमेंट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ओके। इस केसेस में क्या गया था, जियोलॉजिकल कंडीशन को भी उन्होंने भी अकाउंट में रखा था, मतलब वहाँ का किस टाइप का जियोलॉजी है, सॉइल किस टाइप से है, वहाँ पे इंक्लिनेशन किस टाइप से, उन सारी चीज़ों को वहाँ पर उन्होंने कंसिडर किया था। मीन्स अगर हम सिंपल वर्ड की बात करें स्ट्रेंजेस कर्व क्या है, तो स्ट्रेंजेस कर्व जो है उन्होंने कैचमेंट को तीन भागों में क्लासीफाई किया था, गुड, एवरेज एंड बैड में। उन्होंने एक कर्व दिया था और एक टेबल दिया था, और टेबल में उन्होंने ये दिया था कि जो आपका रेनफॉल था एक्स एक्सिस पे था और रन ऑफ वाई एक्सिस पे था, और यहाँ पे एक कर्व था, और उस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग में मान लो जितना रेनफॉल हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम रन ऑफ को कैलकुलेट कर सकते थे बाय यूजिंग ऑफ दीज स्ट्रेंजेस कर्व मेथड, ओके। सो ये एक सिंपल मेथड्स था स्ट्रेंजेस कर्व, बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स में नहीं पढ़ने हैं, बस बेसिक जानकारी चाहिए था। अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज दीज आर नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो स्ट्रेंजेस कर्व के बारे में बस इतना ही समझिए आप, ठीक है। नेक्स्ट रन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। तो रन ऑफ कोफिशिएंट देखिए, रन ऑफ कोफिशिएंट क्या है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए इसमें R इक्वल टू KP लेते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा K क्या होता है स्टूडेंट्स, K जो होता है रन ऑफ कोफिशिएंट होता है, ठीक है, और R जो है रन ऑफ इन सेंटीमीटर्स और P जो है रेनफॉल्स है। अब हम जो रन ऑफ कोफिशिएंट लेते हैं कितना लेते हैं, ठीक है, तो रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू फॉरेस्ट के लिए, अगर फॉरेस्ट में हो रही है तो 0.05 टू 0.02, इन सारी वैल्यूज को आपको याद नहीं रखना है। ये सारी वैल्यूज एग्जामिनेशन में जब आएंगे तो वहाँ पे R की वैल्यू के रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू आपको एग्जामिनेशन में दी जाएंगी, ओके। सो इसको याद नहीं करना, बस आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो रोड पेमेंट के लिए 0.85 लेते हैं, उसी तरीके से और भी है, अर्बन के लिए 0.3 से 0.5, पार्क या फॉर्म्स के लिए 0.05 टू 0.3 एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल के लिए 0.9। ये सब रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू है। सो अगर आपको रन ऑफ कोफिशिएंट पता है और प्रेसिपिटेशन पता है तो R इक्वल टू K इंटू P करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको रन ऑफ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है बिनीज परसेंटेज मेथड्स। सो व्हाट डज इट मीन फ्रॉम बिनीज परसेंटेज, ओके। मेनली आपको दो चीज़ समझना है इसमें, इंग्लिश के बारे में और रन ऑफ कोफिशिएंट मेथड, क्योंकि इसी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। अदरवाइज जो स्ट्रेंजेस कर्व है और बिनीज परसेंटेज है इसका यूटिलाइज बहुत ही कम किया जाता है, बट एज पर योर सिलेबस आपको इसके बारे में पढ़ना है, सो मैं इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो बिनीज, सर अलेक्जेंडर बिनी, उन्होंने एक हाइड्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बेस्ड ऑन हिज रिजल्ट ऑन ऑब्जर्वेशन इन वेंगाना बेसिन in East Maharashtra and establish certain percentage of runoff from rainfall which are given below। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, in this method the condition of catchment and other geological and hydrological factors are taken into account। उन्होंने भी जिस तरीके से हमारे स्ट्रेंजेस थे, उन्होंने जिस तरीके से हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस को और वहाँ पे जियोलॉजिकल कंडीशन को उन्होंने कंसिडरेशन में लिया था, तो यहाँ पर उन्होंने जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स दोनों को उन्होंने अकाउंट में लिया था। वहाँ पे सिर्फ जियोलॉजिकल था, यहाँ पे जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल दोनों फैक्टर्स को उन्होंने कंसिडर किया था।
बीनीज टेबल एंड कर्व्स एंड गिव द आइडिया, इन्होंने एक टेबल दिया था और कर्व दिया था, ठीक है। गिव द आइडिया ऑफ परसेंटेज ऑफ रन ऑफ एंड फ्रॉम दैट yield can be computed from Binet's table. If the topography is having same feature, then it can be correlated with the standard chart and from that runoff can be calculated, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक टेबल और एक कर्व दिया था और एक परसेंटेज रन ऑफ का उन्होंने एक टेबल दिया था। उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जितना मान लो कि आपका रेनफॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे परसेंटेज रन ऑफ को कैलकुलेट करते थे। बट ये सब जो मेथड्स था, जैसे कि स्ट्रेंजेस का मेथड है और बीनीज का मेथड है, उतना ज़्यादा ये यूटिलाइज नहीं किया गया सारे जगहों में, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल था वहाँ पे। टिपिकल नहीं था इन द सेंस कि आपको वहाँ पे टेबल्स की ज़रूरत होती थी और वहाँ पे आपके कर्व की ज़रूरत होती थी, ये सारे चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता था। तो भी फिर भी इसका यूटिलाइज बहुत जगहों पे किया जाता है, बट सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज किया जाता है वो इंग्लिश मेथड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन में ईजी होता है और सारे फॉर्मूलाज गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस आप सिंपली इतना याद रखिएगा कि बीनीज टेबल से हम लोग ये समझते हैं, बीनीज मेथड से, कि बीनीज टेबल एक मेथड है जिससे हम लोग रन ऑफ को कैलकुलेट करते हैं। और उन्होंने क्या किया था, जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स को उन्होंने कंसिडरेशन किया था जब वो इसका एनालिसिस कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया था, परसेंटेज रन ऑफ और बीनीज टेबल और कर्व दिया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रन ऑफ को कैलकुलेट किया था। बस इतना ही आपको जानना है, अदरवाइज इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ना है नहीं, ओके। सो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको ये पता चल गया कि रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए जो 4 मेथड्स है, इंग्लिश मेथड है, स्ट्रेंजेस मेथड्स है, बीनीज मेथड है एंड रन ऑफ कोफिशिएंट मेथड। दैट्स इट कि फ्रॉम ये इससे आपको यही समझ में आया कि आप जो लेक्चर्स अभी कंप्लीट किए उसमें आपको सिर्फ रन ऑफ को कैलकुलेट करना था और कौन कौन से मेथड्स है उसके बारे में आपको बताया, ओके। अब देखिए थोड़े बहुत इल्ड्स के बारे में आपको बता दूं, इल्ड्स क्या होता है ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में जो है पूछे जाते हैं और सिर्फ सिंपल इल्ड्स के बारे में पूछा जाता है। तो इल्ड्स के बारे में आपको एक बार बता दूं। देखो मान लो कि कोई कैचमेंट है, कैचमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। कैचमेंट मतलब वाटर जो भी आता है लैंड्स पे आने के बाद में जो भी रूट फॉलो करते हुए यहाँ पे पानी आगे की ओर मूव करता है और जहाँ पे जाकर के ये पूरा जमा, ये सब कैचमेंट्स कहलाता है ना। तो ये कैचमेंट है। तो देखो जितना बारिश हुई है एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर में जितनी बारिश हुई है, उस बारिश होने के बाद में रन ऑफ के फॉर्म में जा करके आउटलेट के पास में, आउटलेट जहाँ मान लो यहाँ पे आउटलेट है ना, यहाँ पे आउटलेट है, आउटलेट के पास में कितना पानी वहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे, है ना। अब 1 साल की हम बात कर रहे हैं, तो 1 साल की जाहिर सी बात करें तो 1 साल में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो जितना पानी आपका अवेलेबल है वही कहलाता है इल्ड। मतलब कैचमेंट के थ्रू आकर के पानी आउटलेट के पास में जितना अवेलेबल है उसको हम लोग इल्ड्स कहते हैं, ओके। सो इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फ्रॉम ए कैचमेंट एरिया एट द आउटलेट इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब 1 साल में जो कैचमेंट के द्वारा पानी आया है आउटलेट के पास में वो कितना है, दैट इज कॉल्ड इल्ड। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलियन मीटर क्यूब, ओके। और हेक्टेयर मीटर, ठीक है, इसको मिलियन मीटर क्यूब में और हेक्टेयर मीटर में इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फ्रॉम ए कैचमेंट्स, जो ये कैचमेंट है इससे एट द आउटलेट के पास में इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल में। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलियन मीटर क्यूब या मिलियन क्यूबिक मीटर्स कह सकते हैं और हेक्टेयर मीटर भी कह सकते हैं आप, इज कॉल्ड एज इल्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इल्ड कहते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी इल्ड्स के बारे में रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट थे। आई होप कि आपने इल्ड्स के जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझे होंगे, ठीक है। अब डिपेंडेबल इल्ड्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। पहले एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन एस्योर्ड इल्ड। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ए गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब जो दिए गए हमारे साल है उसमें कितने पानी जो है क्वांटिटी वाटर का अवेलेबल है एक रेनफॉल साइकिल्स के अंदर में, ठीक है। इल्ड कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट एज स्टोरेज कैपेसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द इल्ड्स। इल्ड का जो कैलकुलेशन होता है इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से हम लोग पानी के स्टोरेज के बारे में जानते हैं। क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि कितना बारिश हुआ है और कितना हमारे आउटलेट पे पानी पहुंचा है, तो आप इल्ड्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इल्ड्स मतलब होता है ये कि आपके रन ऑफ के द्वारा, रन ऑफ से जितने भी पानी आए हैं और वो आउटलेट के पास में कितना वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी है, कितना क्वान्टिटी वाटर अवेलेबल है उसके आउटलेट के पास में पूरे 1 साल में, उसी को हम लोग इल्ड्स कहते हैं, ठीक है।
देखो इल्ड कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनालिसिस ऑफ रेनफॉल्स, रेनफॉल के एनालिसिस से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को देता है, ठीक है। सो ये लिखा हुआ है गिव ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए नाउ सपोज एट पर्टिकुलर साइट मिनिमम एंड मैक्सिमम इल्ड, मान लो ये दिया हुआ है मिनिमम इल्ड 50 और मैक्सिमम इल्ड दिया हुआ है 400। सो मिनिमम और मैक्सिमम सब क्या समझ रहे हो, मतलब एक साल में कहीं पे 50 मिलियन मीटर क्यूब पानी आया है आउटलेट के पास में, और एक जगह में आया है 400 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है। गेजिंग फॉर 35 ईयर्स, इट मीन्स दैट ये 35 साल का दिया हुआ है, 35 ईयर्स का, 35 साल में इतना इतना दिया हुआ है, 50 मिलियन मीटर क्यूब और यहाँ पे 400 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम है, 35 ईयर्स का डेटा है ये, ठीक है। इट मीन्स दैट इन एवरी 35 ईयर्स ओनली वंस यील्ड रीचेज मैक्सिमम, मतलब 35 साल में, पूरे 35 साल में एक ही बार ऐसा होगा कि वो मैक्सिमम यील्ड को क्या करेगा, रीच करेगा, यानी 400 मिलियन मीटर क्यूब। ये जो पानी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे साल में एक बार ही ऐसा होगा कि 400 मेगा मिलियन मीटर क्यूब को रीच करेगा। दैट मीन्स 400 मेगा मिलियन मीटर क्यूब इफ इट इज प्लान फॉर 400 मेगा मिलियन मीटर क्यूब, बट इफ इट इज प्लान फॉर 50 मेगा मिलियन मीटर क्यूब इट विल बी फिल्ड अप टू डिजाइन कैपेसिटी एवरी ईयर्स, ठीक है। दैट मीन्स इट्स डिपेंडेबिलिटी इज 100%। इसके बारे में आपको समझाएंगे, अभी आप ध्यान से इसको समझिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फॉर 400 मेगा मिलियन मीटर क्यूब इट्स डिपेंडेबिलिटी अबाउट 3%। If you adopt for minimum yield, a small and low cost dam is possible, ठीक है, but we cannot utilize resources fully, and if you design for it for maximum yield, the height of dam will be large and more money will be kept blocked unnecessarily। देखिए ये चीज़ मैंने पढ़कर आपको बताया, मैं आपको समझा रहा हूँ एक प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल्स, ठीक है। मान लो कि आपके जो 50 मेगा मिलियन मीटर क्यूब और 400 मेगा मिलियन मीटर क्यूब जो पानी है, मिनिमम 50 मेगा मिलियन मीटर क्यूब है और मैक्सिमम कितना है 400 मेगा मिलियन मीटर क्यूब है, इल्ड्स है। इल्ड्स कहने का मतलब है कि आपके आउटलेट के पास में पूरे 35 ईयर्स में ये दिए गए हैं, 35 साल में आपके इतने पानी आए। एक जगह में मान लो कि एक जगह जो हमारा है वहाँ पे आया है ए पे आया है यहाँ पे कितना 50, और यहीं पे बी है, मान लो यहाँ पे आया है 400 मेगा मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो इसमें समझना यही है कि मान लो आप मिनिमम यील्ड्स के लिए अगर डिज़ाइन करते हो, मिनिमम यील्ड्स के लिए अगर डिज़ाइन करते हो तो क्या होगा, उधर डिपेंडेबिलिटी उसका 100% होगा, मतलब 50% आपने अगर डिज़ाइन किया तो हो सकता है कि आपका जो पानी का अवेलेबिलिटी है इरिगेशन के लिए कम हो जाए। और अगर मैक्सिमम के लिए अगर डिज़ाइन करते हैं 400 मेगा मिलीमीटर क्यूब के लिए, तो फिर डैम का हाइट बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी है ना वाटर्स का, तो वहाँ पे अननेसेसरली क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट होगा। सो जब भी हम डिपेंडेबिलिटी की बात करते हैं तो हम ऐसे डिपेंडेबिलिटी की बात करते हैं जहाँ पे ऑप्टिमम हो, मतलब जिससे क्या हो कि दोनों हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो, हमारा जो इरिगेशन का रिक्वायरमेंट है उस डैम से वो भी फुलफिल हो और जो हमारा स्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो भी मिनिमम हो। तो उस दोनों के बीच में ही हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो डिपेंडेबिलिटी है उतना होना चाहिए, ठीक है। सो इसी चीज़ के बारे में इसमें कहा गया है, ठीक है। सो यही चीज़ डिपेंडेबिलिटी है। तो डिपेंडेबिलिटी के बारे में आपने समझा, वही मेनली डिपेंडेबिलिटी में यही आपको समझना था यील्ड्स के बारे में, कि यील्ड मतलब होता है कि जो कैचमेंट है, कैचमेंट के थ्रू होकर के आउटलेट के पास में जितना पानी एक साल में पहुंचता है उसको हम लोग कहते हैं यील्ड्स, ठीक है। और डिपेंडेबिलिटी यील्ड्स के कहने का मतलब है कि इसको हम एस्योर्ड यील्ड्स भी कहते हैं, एस्योर्ड यील्ड्स। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया एक रेनफॉल साइकिल्स के अंदर में जितना भी क्वांटिटी आपके पास आ रहा है, ठीक है, उसी के बारे में से बात करते हैं। और हम मोस्टली ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन हो ऑप्टिमम हो, है ना। मान लो कि अगर आप कम के लिए 50 मेगा मिलीमीटर की एक एग्जांपल दिए तो उसके लिए कर रहे हो, तो आपके पूरा जो रिक्वायरमेंट है डिपेंडेबिलिटी तो 100% उसी पे है, क्योंकि हम 100% डिपेंड है उस पर, और जितना पानी का रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है। और 400 मेगा मिलीमीटर क्यूब के लिए करते हैं तो मैक्सिमम हो जाएगा, हाइट ऑफ डैम बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे अननेसेसरली वहाँ पे पैसा ज़्यादा मनी एक्सपेंड होगा। तो हम ऐसा करें कि हम एक ऑप्टिमम ले करके डिज़ाइन करें, एक ऑप्टिमम डैम का ले ले, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें। तो यही सब है डिपेंडेबिलिटी यील्ड्स के रिगार्डिंग्स में जो कॉन्सेप्ट है। सो ये सारी चीज़ें थी। तो अगर एग्जाम्स में आते हैं आप लोग तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट्स।